हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राकेश यादव। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल एंड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द जेईई एडवांस इन द लास्ट प्रीवियस इयर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज n फैक्टोरियल एंड एनसीआर। n फैक्टोरियल मींस व्हाट इज 5 फैक्टोरियल, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल। इन एनसीआर व्हाट इज 5c4, व्हाट इज 5c3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। दिस इज द मेन पार्ट, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a plus b के पावर n। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर मेनी क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मिडल टर्म, लाइक देयर इज 4 टर्म, द मिडल टर्म विल बी 2 and 3। इफ देयर आर 21 टर्म, then middle term will be 11। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकली एंड अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। व्हाट इज मीन बाय न्यूमेरिकली? न्यूमेरिकली मींस मॉड वैल्यू। सपोज देयर इज -5, 4, -10, 21, -10। What is numerically greatest term? -10. And what is algebraically greatest term? 4. Means in algebraically we consider sign and in numerical we consider mod value. After that we will discuss about the summation of binomial coefficient like nc0 plus nc1 plus nc2 plus ncn. This topic is very important. This topic is very important. We will discuss it about it in detail. After that we will discuss about the multinomial theorem. यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बाइनोमियल। There are two terms a and b. In multinomial हम लोग डिस्कस करेंगे more than two terms, a plus b plus c के पावर n, x plus y plus z plus a के पावर n, means more than two terms. In last हम डिस्कस करेंगे expansion of negative and fractional power. Here n is belongs to natural number. n is belongs to natural number. लेकिन हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? Power of expansion of power and negative and fractional power. So let's start it. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इसको डिनोट कैसे करते हैं? n साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसका एक और डिनोशन है n फैक्टोरियल। इसको कैसे पढ़ते हैं? बोथ आर सेम। इसको पढ़ते कैसे हैं? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। इसको लिखते कैसे? या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं। हियर n बिलोंग्स टू natural number, like 5 factorial, 4 factorial, 7 factorial, 31 factorial. So what is the meaning of this? What is the meaning of 5 factorial? What indicate 5 factorial में क्या दिखाता है? So what is the meaning of this? Means n factorial को हम डिफाइन कर सकते हैं। n factorial is equal to product of first and natural number and natural number. And factorial means n factorial is equal to product of first and natural number. Here is 5 factorial. 5 factorial means product of first 5 natural number, means 1, 2, 3, 4, 5. Product of first 5 natural number. इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 120. 4 factorial. 4 factorial means product of first 4 natural numbers. Means from 1 to 4. 1 into 2 into 3 into 4. इसको रिवर्स कर रहे हैं। 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 24. 7 factorial. 7 factorial means product of first 7 natural number from 1 to 7. 1 into 2 into 3 up to 7. इसमें बोल सकते हैं 7 into 6 into 5, 3 into 2 into 1. Clear? What is mean by 5 factorial? Means product of first 5 natural number. What is mean by first 4 factorial? Product of first 4 natural number. n factorial. n factorial means 1
into 2 into 3 into n, yeah, n into n minus 1 into n minus 2, 4 3 2 1, n can be anything, n can be 5, n क्या हो सकता है 4, n क्या हो सकता है 7, means n is any natural number. क्लियर? व्हाट इज मीनिंग n फैक्टोरियल? हम लोग सब इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे. 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. What is this? 4 into 3 into 2 into 1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 factorial means 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial. इसको 4 factorial means 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1. What is this? This is 3 factorial. First of 3 natural numbers means 4 factorial is equal to 4 into 3 factorial. इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 into 4 into 3 factorial means इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 into 4 into 3 factorial. It means n factorial is equal to n into n minus 1. 5 into 5 minus 1, n minus 1 factorial. ये इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं n into n minus 1 n minus 2 factorial. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम लोग थ्रू आउट द बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे. इसका हम लोग एनसीआर में यूज करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. So understand it very clearly. What n factorial can लिख सकते हैं? n minus 1 factorial, n minus 1 n minus 2 factorial. Okay. There is one special case. Special case 0 factorial is equal to 1. यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? n factorial define normally natural numbers. But हम क्या लिखते हैं? 0 factorial is equal to 1. 0 is not natural number. 0 क्या होल नंबर है? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. हाउ 0 factorial is equal to 1. ओके. NCR. इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं. NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. This is formula. सपोज हमें कैलकुलेट करना है 5c2 n is equal to 5 means 5 factorial upon r factorial. R is equal to 2 factorial n minus r. 5 minus 2 factorial is equal to 5 factorial upon 2 factorial 3 factorial. सबसे पहले कैलकुलेट करना है 7c4 n is equal to 7 factorial upon r factorial. R is equal to 4 factorial n minus r means 7 minus 4 factorial is equal to 7 factorial upon 4 factorial into 3 factorial. ये हमने क्या देख लिया? फार्मूला देख लिया. दिस इज कॉल्ड लोअर इंडेक्स. R is the lower index and n is upper index. Upper index, here n belongs to natural number, means 1 2 3 up to n. N belongs to natural number and R is always greater than or equal to 0 and less than or equal to n. If 5CR means R कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है? R can be 0 1 2 3 4 5. ओके. हम लोग क्या देख रहे हैं? फार्मूला देख रहे हैं. अब उसको डिस्कस करेंगे. व्हाट इज इट्स मीनिंग, व्हाट डज इट सिग्निफिकेंस, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे. तो एनसीआर मींस
NCR is equal to, what is that its significance? Number of ways in which we can select our object out of n different object. एनसीआर तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमें हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, हम इसमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल, सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास. एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और हमें कमेटी बनानी है 3 स्टूडेंट की. एक क्लास में 10 स्टूडेंट, हमें कमेटी बनानी है 3 स्टूडेंट की. हम क्या कर सकते हैं? सपोज देयर आर 10 स्टूडेंट, S1 S2 S3 S10. हमें कमेटी कितने स्टूडेंट बनाने की है? स्टूडेंट की 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट. तो हम क्या कर सकते हैं? S1 S2 S3. कमेटी ऑफ दिस 3 स्टूडेंट आर S1 S3 S4. कमेटी ऑफ दिस 3 स्टूडेंट आर S2 S5 S10. कमेटी ऑफ दिस 3 स्टूडेंट. इसी तरह हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, डिफरेंट कमेटी बना सकते हैं. तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? इसके लिए हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट अवेलेबल है? 10. हमें सेलेक्ट कितना करना है? 3. मींस 10C3. क्लियर? व्हाट डज इट मींस? इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल. क्लियर? अपॉन में 3 into 2 into 1 into 7 factorial. कैंसिल. मींस हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 210 कॉम्बिनेशन. इस तरह से इन विच 3 मेंबर आर सिलेक्टेड, S1 S2 S3 S1 S3 S4 S2 S5 S10. इसी तरह हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 210 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. सो क्लियर व्हाट इज एनसीआर. हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. प्रॉपर्टी या एनसीआर व्हिच विल बी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग फर्दर क्वेश्चन. उनके डिस्कशन किया प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर. एनसीआर फर्स्ट प्रॉपर्टी NC0 इक्वल टू 1. NC0 इक्वल टू 1. इसको प्रूफ देख लेते हैं. n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल. वैल्यू of 0 factorial is 1. 1 and factorial can say is equal to 1. Second, NCN is equal to 1. N factorial upon R. R value n. N factorial n minus R means n minus n factorial is equal to value of 0 factorial is 1 is equal to 1. Third, NC1 is equal to n. Value of NC1 is equal to n, like 5C1 is equal to 5, 4C1 is equal to 4. इसका प्रूफ देखेंगे. NC1 n factorial R factorial R is equal to 1. 1 factorial n minus 1 factorial. अब n factorial क्या लिख सकते हैं? n minus 1 factorial n minus 1 factorial cancel is equal to n. Third, fourth property NCR is equal to NCn minus R. This property is very important. NCR is equal to NCn minus R. For example, N5C3 is equal to 5C5 minus 3 means 5C2. 5C3, value of 5C3
is equal to 5c2. 10c2 is equal to 10c n minus r means 10 minus 2 is equal to 10c8. Clear? 20c5 is equal to 20c15. 20c5 is equal to 20c15. अब इसका प्रूफ देखेंगे, इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। is equal to m factorial upon में r factorial n minus r factorial. n factorial हम r क्या लिख सकते हैं, n minus n minus r factorial. r को लिख सकते हैं n minus r, n कैंसिल, r रिमेनिंग into r factorial, n minus r factorial, n minus r. Let n minus r is equal to p, n factorial upon में n minus p factorial into p factorial is equal to ncp. Here r की value p, ncp, p is equal to n minus r means nc n minus r. Understood? Property 5, ncr plus ncr plus 1 is equal to n plus 1 cr plus 1. ncr plus ncr plus 1 is equal to n plus 1 cr plus 1. हम क्या करें, अपर इंडेक्स में 1 ऐड कर देना है और लोअर इंडेक्स हायर वैल्यू, दिस इज हायर वैल्यू r plus 1 और अपर इंडेक्स में plus 1. फॉर एग्जांपल 5c3 plus 5c4 is equal to 5 plus 1c4. 10c3 plus 10c4 is equal to 10 plus 1c4. इसका हम लोग यूज कहाँ पे देखेंगे, समेशन ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. जब लोग फर्दर डिस्कस करेंगे उसमें इसका यूज रहेगा, समेशन इन द समेशन ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. हम लोग इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. हम लोग क्या नया नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ a plus b के पावर n, a plus b के पावर n. इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन. तो हम लोग क्या जानते हैं, a plus b के पावर 1 is equal to a plus b. क्लियर? a plus b के पावर 2 is equal to a square plus 2ab plus b square. स्टैंडर्ड रिजल्ट लोग बचपन से इसको याद करते आ रहे हैं फ्रॉम 6th क्लास. a plus b की पावर q is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. हम इसको 6 स्टैंडर्ड नॉट समझ जाती है. हम क्या निकालना है, a plus b की पावर 4. इसको कैसे लिख सकते हैं, a plus b की स्क्वायर इंटू a plus b की स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करने को क्या आएगा, a की पावर 4 प्लस 4ab प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b क्यूब. हमें निकालना है क्या, a प्लस b के पावर 5. इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b इंटू a प्लस b की पावर 4 और a प्लस b की स्क्वायर a प्लस b की पावर क्यूब. मीन्स हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और a प्लस b से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ हम a प्लस b का एक्सपेंशन करके a प्लस b का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा. इट विल टेक मच टाइम. तो हमें कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा.
तो हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट। उससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, a plus b के पावर 1, नंबर ऑफ टर्म इज 1 plus 1। a plus b के पावर 2, नंबर ऑफ टर्म इज 1 2 3 मींस 2 plus 1, 3 टर्म। a plus b के पावर q, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4, 3 plus 1। यहाँ पे a plus b के पावर 4, नंबर ऑफ टर्म इज 1 2 3 4 5 मींस 4 plus 1। ये तो क्लियर नोन हो गया। a plus b के ऊपर 5, नंबर ऑफ टर्म विल बी, कितने टर्म होंगे? 5 plus 1 मींस इन a plus b के पावर n, नंबर ऑफ टर्म इज equal to n plus 1। Like here a plus b के पावर n, number of term is 1 plus 1, a plus b के पावर 2, number of term is 2 plus 1, number of term is 3, a के पावर q, number of term is 3 plus 1 4। क्लियर? सेकेंड, here power of a1, a के पावर 0, power of a is 1, a के पावर 0। इसमें क्या देखते हैं? power of a is 2, power of a is 1। इसमें क्या देखते हैं? a plus b के पावर 1, तो पावर ऑफ a स्टार्ट विल बी 1। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहां खत्म हो रहा है? a के पावर 0। इसमें हम क्या देखते हैं? a plus b के पावर 2, तो पावर ऑफ a कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 इंटू कहां पे हो रहा है? 0, 2 1 0। a plus b के पावर q, पावर ऑफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? a के पावर q 2 1 0, और a plus b के पावर 4, a के पावर स्टार्ट हो रहा है 4 3 2 1 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग बाय 1 कंटीन्यूअसली फ्रॉम n टू 0 मींस पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग बाय 1 फ्रॉम n टू 0। a के पावर 3 से 0, 4 से 3 0 मींस 4 3 2 1 0, 3 2 1 0 2 1 0 1 0। अंडरस्टूड? हम देखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ b। हम यहां क्या देख रहे हैं? b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, a plus b के पावर 4 की b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3। हम a plus b के पावर फॉर्म देखेंगे, b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, b के पावर 4। हम क्या देख रहे हैं? b का पावर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 टू n मींस पावर ऑफ b is increasing by 1 from 0 to n। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? a और b के पावर ऐड करेंगे। 1 plus 0 1, 1 plus 0 1। यहाँ पे a और b के पावर ऐड करेंगे। 2 plus 0 2, 1 plus 1 2, 2 plus 0 2। यहाँ पर हम a और b के पावर ऐड करेंगे। 3 plus 0 3, 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 3 मींस a plus b के पावर 2, a plus b के पावर 1, a plus b के पावर q, here 4, a plus b के पावर 4 मींस summation of power of a and b will be equal to n। Fourth observation, summation of power a and b is n।
हम लोग नया चीज देखेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये क्या होता है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल। यहाँ पे कांस्टेंट कितना मल्टीप्लाई है? 1। यहाँ पे कांस्टेंट कितना मल्टीप्लाई है? 1 1। यहाँ पे 1 into a square 2ab 1 here 1 3 3 1 here 1 4 6 4 1 means this constant is called binomial coefficient. Binomial coefficient. This constant is known as binomial coefficient. Binomial coefficient. Binomial coefficient क्या होता है? Constant multiplied with variable equal to binomial coefficient. Clear? What is binomial coefficient? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखेंगे a plus b के पावर 0 इक्वल टू 1 when n इक्वल टू 1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट n इक्वल टू 0 बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 1 when n इक्वल टू 1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 1 1 1 1 when n इक्वल टू 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 1 2 1 when n is equal to 3 binomial coefficient is 1 3 3 1 when binomial coefficient is when n is equal to 4 binomial coefficient is 1 4 6 4 1 कोई पैटर्न दिख रहा है? 1 1 1 1 plus 2 1 plus 1 2 1 1 1 plus 2 3 2 plus 1 3 1 1 1 plus 3 4 3 plus 3 6 3 plus 1 4 1 means when n is equal to 5 क्या हो जाएगा? 1 1 plus 4 5 4 plus 6 10 6 plus 4 10 4 plus 1 5 1 number of term is 1 2 3 4 5 6 number of term n plus 1 5 plus 1 when n is equal to 6 1 6 15 20 15 6 1 अंडरस्टूड। इसी तरह n इक्वल टू 7 के लिए लिख सकते हैं, n इक्वल टू 8 के लिए लिख सकते हैं, n इक्वल टू 20 के लिए लिख सकते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमें एक्सटेंशन लिखना है a plus b के पावर 5। हमें क्या लिखना है? a plus b के पावर 5 a plus b के पावर 5। तो नंबर ऑफ टर्म में 6 1 2 3 4 5 6 ओके। अब number of term is 6 and power of a is decreasing from n to 0 means power of a is decreasing from 5 to 0 a की पावर 5 plus a की पावर 4 plus a की पावर क्यूब plus a स्क्वायर plus a की पावर 1 plus a की पावर 0 and second ऑब्जर्वेशन क्या था? power of b is increasing from 0 to n means b की पावर 0 b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3 b की पावर 4 b की पावर 5। क्लियर? हमें क्या बच गया? फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना है। हम a और b का पावर लिख दिए, हमें क्या लिखना है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां से लिखेंगे? यहां से लिखेंगे 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1 हो गया एक्सप्रेशन a plus b के पावर
6 a plus b की पावर 6। तो फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म इज a6 plus 1, नंबर ऑफ टर्म इज 7। हम लोग क्या देख रहे हैं, a की पावर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 6 to 0 एंड b की पावर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 6। हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 6 b की पावर 0 प्लस a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस a b 5 प्लस b की पावर 6। पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग एंड पावर ऑफ b इज इंक्रीजिंग। हमें क्या लिखना है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट यहां से लिख देंगे 1 6 15 20 15 6 1 1 6 15 1 6 15 20 15 6 1 a plus b की पावर 6 इक्वल टू a। सिंपल, हमें लिखना a plus b की पावर 7, a plus b की पावर 7। तो कैसे लिख देंगे, पावर ऑफ a is decreasing from 7 to 0, पावर ऑफ b is increasing from 0 to a, but what the problem is, हम यहाँ से n equal to 7 के लिए आराम से हम very easily बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इफ a plus b की पावर 20, हमें इसके लिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो पहले हमें n equal to 7 निकालना पड़ेगा, 8 9 10 11 12 up to 20। it will be very long process, very lengthy process, so we need to some different alternative। तो हमारा नया कांसेप्ट आता है इन द टर्म ऑफ NCR। NCR हम पहले पढ़ चुके हैं, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम सीखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ NCR, जो हम डिस्कस करेंगे इन